ਭਾਗੀ ਹੋ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਬੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਇਸ ਚੋਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਮਿਲੋ ਗਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਫਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸੀ ਕੱਢੀ ਗਏ, ਸਮੋਸੇ ਠੰਡੇ ਸਨ ਜੀ, ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਠੀਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਛਕੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਛਕੋ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਛਕੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਦਾਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵੀ ਔਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਸ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੈਪੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਨੈਪੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਿ ਜੋ 12 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋ ਸਾਧੂ ਭਲਾ ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
यही कहता कि जिन्हें कन्या दान की है, कन्या जो है वो जिगर का टुकड़ा हुंदा, कागज़ का टुकड़ा नहीं हुंदा। तो हमेशा चाहे मैं बरात दे नाल गया, चाहे मेल दे नाल, उत्थे कहीदा कि जो जिगर का टुकड़ा मित्रो उन्होंने जिगर दे विच ही रखण दी लोड़ पैंदी है। कन्यादान बहुत वड्डा, पर दास ये जरूर बेनती करेगा साध संगत नूं, खूनदान भी बहुत वड्डा दान है। और नैपोली की सारी संगत नूं मुबारकबाद दिंदा कि तुसी एक बहुत वड्डा काम करदे हो। हमेशा खूनदान दे भी तुसी कैंप लगांदे हो और मानवता दे काम आउंदा है। खून जिहड़ा है ये इंसानियत दे बंदे नूं जांदा है। खून दा ब्लड दा वो ग्रुप हुंदा है, ये नहीं काले दा, गोरे दा, इंडियन दा, पाकिस्तानी दा, नहीं। दो ही तो चीज़ां ने जिहड़ियां बंदा अजे तक जिन्ने वड्डे साइंस वाले हो जान कोई नहीं बना सकिया, ना माँ का दुध ते ना ही खून। मैं कई बार एक कहानी सुनाया करना कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिहड़े सन वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन। बहुत पढ़े लिखे सन, डॉक्टरेट सी, और वो सवेरे रोज़ पहला पाठ पूजा करके तो फिर अपने काम शुरू करते सन। राष्ट्रपति भवन जिन्होंने दिल्ली वेखे है कितना वड्डा वो भवन है, तो उन्होंने मिलने वास्ते सवेरे सवेरे एक फॉरनर जिहड़ा सी विदेशी उन्हों का श्रद्धालु से उन्होंने मिलना आया, और उन्हें सुनेहा भेजा, वो पूजा कर रहे सन, पाठ कर रहे सन। उन्होंने सुनेहा भेजा कि तुहाडा दोस्त मिलना आया तो उन्हें जल्दी है, उन्हें जाना है, फ्लाइट है उसकी, तो जे इजाज़त दो तो हुणे आ जाए। राजेंद्र प्रसाद जी ने इजाज़त देती, उन्हें गल ध्यान नाल सुनना साध संगत। और वो गया, जदों वेख्या पूजा कर रहे ने, फुੱਲ भी पे ने, होर चीज़ां ने, पर वो नाल मिट्टी का ढेला पिया। वो वेख के हैरान हो गया, पढ़िया लिखिया भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू डॉक्टरेट की PhD, तो इन्हों इन्ना भी नहीं पता मिट्टी की पूजा कर रहे हैं। तो वो को रहा नहीं गया, कह लगा तुसी इन्ने वड्डे अहुदे ते हो, इन्ने तुसी पढ़े लिखे हो, तो यह एक सब तो निमन्नी निकम्मी जी चीज़ मिट्टी की पूजा कर रहे हो। तो अगों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, एक गल मेरी मित्र सुन लै, जिन्हों तू निकम्मी कहना, जिन्हों नखिद्ध कहना मिट्टी है, तू ये मैं दस मिट्टी जिहड़ी है वह बंदा जो मर्जी बना सकता है। मिट्टी के भांडे बना सकते, खिडौने बना सकते, जो मर्जी बना सकते, लेकिन मिट्टी नहीं बना सकते, मिट्टी नहीं बना सकते। जे असी साध संगत परमात्मा का शुक्र ही करना होए तो फिर असी क्यों ना करिए परमात्मा की बनाईया हुई चीज़ां जिहदे नाल साडे शरीर की भी बनतर हुई है। ये पंजां तत्तां दी दास हमेशा क्या करता है, लेकिन साडे च कोई बंदा अजे तक इन्हां चीज़ां नहीं बना सकता जो रब ने बनाईयां, जो हरि ने बनाईयां। इसे वास्ते साडा गुरुआं पीरां ने कहा, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुदाई दा खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, और जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक तिम गुजले केती छुट्टी नाल। मुँह उजला उदा ही है जिसने नाम की प्राप्ति कर ली है संतां पासों। और साध संगत आप जी मेरे पिछे देख रहे हो कांशी TV की अपील भी, उत्थे भी चाहे नैपोली सी, बाद च सत्संग होया और पूरा हाल भरिया होया सी, बहुत मान तरान किया संगतां ने। और उस तो बाद फिर असी चल के दोपहरे शाम नूं तेरनी, जो कि बहुत सुंदर छोटा जिहा कस्बा है, उत्थों की संगत ही बहुत प्यारी है, उत्थों भी उन्होंने बहुत सुंदर हाल किया सी। आशा ने उत्थे और होर गुरु घर ने सारे ने मिल के लंगर वगैरह की सेवा वो की, और बहुत उत्थे भी साध संगत की आशीर्वाद प्राप्त हुई। उत्थे भी बेनती की गई, बोले भी कांशी TV की सेवा जरूर करया करो, जिन्ना भी सरदा पुजदा है। इधर उधर की गल नहीं सुननी हुंदी, कई तो अपने ही होंदे ने दोषी, जिहड़े अपने ही होंदे ने, जिहड़े जिन्हां दे मनां विच नफरत भरी है, वो वक्खो वक्ख अफवाहां फैलांदे ने। लेकिन साध संगत मैं इत्थे आउंदे नूं जदों पहले दिन शुरू ही होया, उस दिन तो आउंदा, दास नूं कदे भी कोई इत्थे इहो जी गल नहीं मिली। सारे ट्रस्टी जिहड़े ने बड़े सेवादार ने और बहुत ही अपना टाइम भी दिंदे ने। और खास तौर पर जिथे साडा TV स्टेशन है, मैनूं तो इहदी कदर है बहुत, मैं मन दे विच रखना। सो आप जी
13ਵੀਂ फिर सत्संग करके रात उत्थे रहे, तो दूजे दिन फिर अरेसो जो है उत्थे गए, जिन्हों के सोने का शहर गिनिया जाता, उत्थे ज्यूलरी का बहुत काम है। हंसराज जी के बच्चे जोड़े ने और गुरु घर की सारी कमेटी जो है, सारे सेवादारी उन आए, उन्होंने बहुत प्यार दिता और उन्होंने ध्यान सी कि संत रामानंद जी का दिन जोड़ा मनाया जाए। और दास ने हुक्म दे रहे सन कि तुसी आओ, तो दास ने उन्हें बेनती की है कि मैं अगस्त तो बाद जरूर आवाँगा, अगस्त तक दास बिजी है। उन्होंने बेनती की है कि भाई काशी टीवी आप जी का अपना टीवी है, इस वास्ते सारे मिल जुल के कोशिश करो कि समाज की सेवा ये राही होंदी रहे। जिहड़े इशू ने वो तो है ही ने, उन्होंने भी चुक्या जाए, लेकिन नाल ही नाल धर्म के नाल हर एक सच्चे धर्म के नाल जोड़िया जाए। तजो पाखंड भजो पार ब्रह्म कहो नानक टाले धर्म। पखंड छड्ड के जदों असी सतगुरु रविदास जी के पाए हुए पूर्णियां ते चलने, 10 गुरुआं के पाए हुए पूर्णियां चलने, रमे हुए राम नूं जब जानते हैं तो तां ही रामायण की कथा होंदी है। असी जिन्ना मर्जी राम राम करिए, राम राम करता जग फिरे, क्या राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसे, गुरु की कृपा नाल जो राम मन च वसदा है ता फल पावे कोई। साध संगत फिर इसकी प्राप्ति होंदी है। इस तरह ही दास ने फिर 13ਵੀਂ तो बाद रेसो तो बाद फिर असी तरवीजो गए, और तरवीजो दे विच सारी दी सारी जो गुरु घर है बहुत उन्होंने नवा लिया है। खुशी डॉक्टर खुशीराम जी उन्होंने बच्चे बहुत चिर तो 14-15 साल तो असी जानने, और वो सेवा भी बहुत करते हैं। उन्होंने नाल मिल के ते गुरु घर दे विच शाम नूं सत्संग होया। उन्होंने तकरीबन 2.5 लाख का जो है बहुत वड्डा हाल है, लंगर का भी प्रबंध है, सारा उत्थे उन्हें कीता है। और वो अजे उहदी रजिस्ट्री होने वाली है, कब्जा उन्हें देता है। तकरीबन जो उन्होंने मैंने दसिया लाख यूरो तो दे चुके हैं, 1.5 लाख यूरो होर तो चाहिए। और उत्थे भी जिन्नी भी माया संगत ने भेंट की सी सारी खुशीराम जी के हथ बड़ा पिया लो तो संगत उस फंड में पाया जाए, ताकि उन्होंने दास ने लिफाफा देने की कोशिश की। मैं क्या थैंक यू तुहाडा, इनू तुसी कृपा करो। और गुरु घर दे विच तो दास उत्थे भी बेनती करके कि गुरु घर की कंपलीशन होनी चाहिए है, ताकि असी तुसी होइए ना होइए वो बिल्डिंग जो बन जाएगी तो उत्थे आने वाली नस्लों की सेवा होगी। सो खुशीराम जी आप जी नूं और प्रधान जी और सारे जिन्ने भी भैन भरा उत्थे सन, दास मुबारकबाद दिंदा है, अपने उपराला कीता है। और अपील करते हाँ कि काशी टीवी की अपील वास्ते भी तुसी हमला बोलो, इस बार हीला करिए, और गुरु घर वास्ते भी सारे तिल फुल जरूर उत्थे बने, ताकि सर्वसांझी वालता जो है वह पैगाम सारे पासे जो महाराज ने कहा है, सतगुरु रविदास जी ने महाराज ने होर गुरुआं ने जो हीरे की गल की है, जिस हरी की गल की उस हरी का प्रचार किया जाए, एको परमात्मा के नाल जोड़िया जाए, एको हरी नाल जोड़िया जाए, तो जातां पातां दे कोड़ तो असी बचीए। यही दास की अरदास है आप सब सारे वास्ते। और फिर असी तरवीजो दे विच भी और दास ये बेनती करे कि बिल्कुल जुलाई के महीने विच असी फिर दास का एक टूर है, जो कि महापुरुषों के नाल उत्थे दास ने आना है। और बेनती करांगे सब तो पहला असी ब्रसल जाना है, ब्रसल तो बाद एम्स्टरडैम तो बाद कोपनहैगन तो बाद फिर असी बर्लिन जाना है। और बर्लिन तो फिर असी उत्थे भी जरूर न्याउन वास्ते अपना मत्था टेकन लई, जिथे संत रामानंद जी ने शहीद किया गया वियन दे विच, उत्थे भी जाना है। वियन तो एथेंस जावांगे, एथन तो फिर नेपोली है, नेपोली तो फिर सारे ने तरवीजो आना है। तरवीजो तो सारी जगह हाल बुक हो चुके हैं। तरवीजो तो फिर असी इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया कैंपटन, और कैंपटन तो फिर पैरिस होके वापस इंग्लैंड आना है। सो दास बेनती करता है सारिया संगतां नूं, आप जी अपने अपने शहर दे विच प्रोग्राम अनुसार कृपा करनी, काशी टीवी का भी ख्याल रखना, और संतां दे दर्शन करके हरी की प्राप्ति करके अपना जीवन सफल करना। साध संगत अज हिंदुस्तान विच जिवें दास ने कई संतां दे जो जीवन ते रोशनी पाई है, जितना सिक्ख्या साध संगत तो आप जी नाल साझ पाने की कोशिश की है। अज दास का ध्यान है कि सूरदास जी जिन्हां दे बड़े सोहने दोहे भी ने,
चौथी क्लास विच भी जदों असीं पढ़दे सां ते पंजाबी दे विच उन्हां दे दोहे हुंदे सी जिहदे विच उन्हां कहा सी कि पारस जिहड़ा है पारस जिहड़ा है वो भावें उन्होंने लोहा मिल टच करे या उन्होंने कोई भी टच करे उन्होंने सोना कर दिंदा है। इस तरह ही जिस तरह कबीर महाराज जी ने सतगुरु कबीर जी ने कहा कि लोहा जिहड़ा है तरवर के संग चंदन के संग तरवर बिगड़ियो सो तरवर चंदन होए ने बिगड़ियो। शायद जंगल दे विच शायद बड़े बड़े पेड़ हुंदे ने लेकिन जिहड़ा पेड़ भी संग करदा है जिस तरह आप जी असी सारे इस वेले सत्संग कर रहे हैं जिहड़ा भी संग करदा है चंदन दा उहदे विच ही खुशबू आ जाती है। फिर उन्हें कहा कि गंगा के संग सरिता बिगड़ियो गंगा नूं बड़ा पवित्र गिनिया जाता है और उहदे नाल कोई गंदा नाला भी जिहड़ा उहदे नाल मिल जाए गंगा दे जार वाले सो सरिता गंगा होए निबड़ियो वो गंगा हो जाती गंगा का रूप हो जाता है पता ही नहीं लगता किहड़ा गंदा नाला सी ते किहड़ा की है। इस तरह उन्होंने कहा कि पारस के संग लोहा बिगड़ियो सो लोहा कंचन होए निबड़ियो। और जिहड़ी गल साडे जीवन में आउण वाली है वो है उन्होंने कहा कि संते संग कबीरा बिगड़ियो संतां दी जदों संगत कबीर ने कीती सो कबीरा राम होए निबड़ियो। तोई मोई मोई तोई अंतर कैसा साध संगत आओ ये संगत का फल है। एक होर कहानी आप जी नाल दा सांझी करना चाहता है सूरदास जी के जीवन बारे गल करन तो पहला कि एक बच्चा जदों हाई स्कूल च पढ़दा सी ते वो सर्ब कला समर्थ सारे निपुण सी हमेशा स्कूल दे विच उहने फस्ट आउणा बाकी भी सारे काम कर लेने और माँ बाप भी उहदे ते मान करते सन समाज भी मान भैन भरा भी मान करते साडा भरा है बड़ा निपुण है बड़ा अच्छा पढ़ाई दे विच है सारे समाज सारा पिंड उन्होंने अच्छा गिनदा सी और उस स्कूल के प्रिंसीपल भी उन्होंने बड़ा खुशी दिंदे सन। ते साध संगत फिर कॉलेज जाना सी कॉलेज गया लेकिन कुछ ही महीनों विच वो पिछे रहना शुरू हो गया। ਉਹਦੇ चेहरे ते वो जिहड़ी खुशी सी जिहड़ा नूर सी हौली हौली वेखण च आया कि खत्म हो गया क्योंकि कॉलेज दे विच संगत उन्होंने माड़ी मिल गई। दास संगत की गल करन लगा सतगुरु रविदास जी सारे गुरुआं ने कहा कि संगत सोच के करो किहड़े बंदे कोल तुसीं बहना ये तुहाडे वस है तुसीं उठ के जा सकते। मैं कई बारी हुंदा जिथे भी निंदा चुगली होए मैं वेख्या मेरा हुण इत्थे वस नहीं है इन्हां ने करनियां नहीं इधर उधर दियां गल्लां ते मैं घड़ी वेख के उदां ही कह दिना उदां ही गल बना के कि भाई मेरी किते होर अपॉइंटमेंट मैं चलिया ना कि नाराज़ भी नहीं करीदा भी तुसीं चुगली कर दिओ लेकिन उठ के चली जाइदा क्योंकि मेरे वस है। तो जे मैं बैठ के सुना उहदे दो आप भी मार दियाँ फिर तो मैं अपने सिर ते पाप चढ़ावांगा। और वो बच्चा जिहड़ा सी संगत ऐसी मिल गई कि पिछे रहना शुरू हो गया और अखीर की होया माँ बाप नूं फिकर लगा उन्हें कहा कि भाई तू संगत का ख्याल रख अच्छे लोगों नाल बह तो माँ बाप नूं भी अगों कहे मैं आप हुण सियाणा वां मैनूं नहीं पता मैं किहदे कोल बहना ते किहदे कोल नहीं बहना। तो गुरमुखो प्यारिओ अखीर ते जो होना सी फिर वो होया फेल हो गया। जब फेल हो गया तो इन्नी नमोशी उस वेले आई कि फिर अपने आप को कमरे च बंद कर लिया ना बाहर आए ना माँ बाप नूं दसे कुछ पर बड़ा ही बेइज्जती उन्हें महसूस की। और साध संगत जदों पता लगा वह जिहड़ा हाई स्कूल का प्रिंसीपल सी उसनूं वो चल के उहदे घर आए और आके उन्होंने कहा कि मित्र तू इंज कर मैनूं मिलना ही पर मेरे घर आई टाइम फिक्स कर लिया सियाल दे दिन सन। वो आया जदों मिलने वास्ते प्रिंसीपल साहब नूं ते प्रिंसीपल जी उत्थे एक कुर्सी ते बैठे हुए ते अंगीठी सेक रहे सन कोलियां दी। ते साध संगत वो बच्चा आया सामने कुर्सी खाली सी उत्ते बह गया कुछ नहीं किया प्रिंसीपल ने उन्होंने चिमटे नाल एक जलदा होया कोला लाल सूआ वो चुक्या ते थल्ले मिट्टी ते सुट दिता। थोड़ी देर ते वो जिहड़ा कोला सी भखदा रहा लेकिन फिर काला हो गया। ये हुण बच्चा वेख रहा इस गल नूं बच्चा वेख रहा
कि प्रिंसीपल को गल भी नहीं की, कोला चुक के मिट्टी 'ਚ सुट्टिया ने। पहला भखदा सी, फिर काला शाह हो गया। तो फिर जो काला शाह हो गया, प्रिंसीपल ने फिर उन कोले नूं चिमटे ने चुक्या, तो फिर जेडे बलदे हुए कोले सन, जेडे लाल शाह सन, उन्हां दे नाल रख दिता। तो वेखदे वेखदे कोला फिर लाल हो गया। प्रिंसीपल ने बगैर कहा उस बच्चे नूं ज्ञान देता कि तू भखदा सी, तेरे विच सब कुछ वड्याइयां सी, पर तू ऐसी संगत 'ਚ बह गया, मिट्टी की संगत कर लई आ, इस वास्ते हुण तेरा वो जिहड़ा तू कोयला बन गया, तू काला शाह हो गया। तो जे तू मुड़ के संगत अपनी ठीक चुन ले तो फिर भी तेरा जन्म जिहड़ा सहेला हो सकता है, फिर भी तू तरक्की कर सकदा। सो साध संगत आओ, असी संगत जिहड़ी है वो सानू पार उतारा करदी है। तो सूरदास जी का जन्म साध संगत वो एक जो ना उन्होंने पिता का रविदास सी, सतगुरु रविदास जी नहीं, उन्होंने पिता का नाम ही रविदास सी। और उन्होंने घर जन्म लिया। जन्म तो उन्होंने नाम मदन मोहन नाम सी। मदन मोहन बहुत सोहने सन, सुनखे सन, रब की दिती हुई समझी बड़ी सी। बचपन ते गीत लिखने शुरू करते, कवितावां लिखनियां शुरू करतियां, दोहे लिखने शुरू करते और सारे समाज दे विच बड़े मशहूर हो गए। सारे समाज दे विच इज्जत। और साध संगत मैनू अपना बचपन याद है। बचपन दे विच जदों अजे 8-10 साल की उम्र सी, तो जदों गुरु घर दे विच जाके कीर्तन करते सां, गुरु घर दे विच जाके रब की कथा करते सां, उस उम्र च भी तो सारी संगत किवें चुमदी सी, किवें प्यार करती सी। तो मैं समझ सकना कि सूरदास जी नूं किस तरीके नाल, मदन मोहन नूं किस तरह प्यार मिलिया होएगा। सुनखे भी सन। और साध संगत फिर उन्होंने जदों जवान हो गए तो मशहूरी सारे पिंड दे विच, सारे सुनखे भी सन, सोहने भी सी, गुण भी सारे, कविता गीत बोलने और बड़ी आवाज़ भी सुरीली सी। तो एक दिन गीत ही लिखते पे ने, तो एक सरोवर सी जिथे कपड़े धोने वास्ते एक लड़की आई हुई सी। वो लड़की ने जदों उत्थे इशनान भी किया तो कपड़े भी धो रही सी। तो साड़ी पा के जिवें पतले असीं देखते होंगे कई बारी इशनान बिहार में यूपी जाओ तो इस तरह ही होंदा है। और वो वेख के उसकी सुंदरता सूरदास जी दंग रह गए। उसकी सुंदरता वेख के ही अपना सब कुछ भुल गए, जिहड़ी भगती सी उसनूं भुल गए। कवितावां ते जिहड़ा होर काम लिखना सी पिछे रह गया। तो हर वेले उस लड़की दे ही सुपने लैन लग पे। जदों कोई दिन बाद उन्होंने पता लगा कि यह तो मेरी बड़ी वड्डी गलती हो गई। मैं एक बाहर का जिहड़ा सुहापन है, बाहर की सुंदरता नूं वेख के मैं जिहड़ी मेरे अंदर की सुंदरता सी उहदे ते मिट्टी पा देती। साध संगत देखने वाली चीज़ है, साडे नौजवानों नूं सोचण वाली चीज़ है कि भाई बाहर की सुंदरता है वो अपनी जगह है, लेकिन जिहड़ी अंदर की सुंदरता है, मन की सुंदरता है। कई बारी हुण असी बाजार च जाइए देखने, भावें इटली भी हुण हो के आए हैं, इत्थे भी जिन्नियां दुकानां ब्यूटीशियन दियां खुल गईयां ने, नौं बनाउण दियां, वाल बनाउण दियां। ते पिछे जे मेरी अपनी पोती की शादी हुई है तो वह किवें ब्यूटीशियन आके रोज़ ही वक्खो वक्ख बंदे आउण, अपने पैसे लैके गांह जाण ते बाकी पोचा जा फेर के बच्ची नूं ते उन्हां दे जिवें उन्हां दे रिवाज बनाए, उन्हां वाल शाल बनाए, कुछ करदे सी। अजकल जिन्नी जोर इस गल ते लगा होया, इंग्लैंड विच की, इंडिया विच की, सब जगह जिन्ना बिजनस ये वधिया उन्ना मैं राशन का बिजनस वाधा नहीं वेख्या। इन्ना ज़्यादा लोगों का जोर लगा बाहर की सुंदरता ते और साध संगत, लेकिन अंदर की सुंदरता काश के असी कोशिश करिए। अंदर की सुंदरता अज जिवें असी सत्संग करने यही कर सकती है। अंदर की सुंदरता केवल तो केवल सतगुरु का ज्ञान ही दे सकता है, जिहदे विच वो गुण जिहदे विच हथ जोड़ने आ जाए, माफ़ी मंगनी आ जाए, जिहदे विच दूसरे की शोभा करनी आ जाए। साध संगत निंदा करने विच ते असी मिनट नहीं लाते। और मैं कई हैरान होना कि गुरु घर दे विच ही तू करके एक दूजे नूं बुलाणगे, भाई जी तो सिख लो,
महाराज रविदास जी ने कदे तू करके किसी ने नहीं बुलाया, जी करके हर एक दा सत्कार करना, हर एक नूं मान करना साध संगत उन्हें सिखाया। तो असी उन्हां दा नाम लैने आ, लेकिन असी करिए ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ महापुरुष हुण संत रामानंद जी दिन मनाया, उन्हां दी नज़दीकत हो के तुसीं देखा होएगा कि किस तरीके नाल वो सत्कार सारिਆਂ ਦਾ करते सन। तो साध संगत सानूं निंदा चुगली छड्ड के केवल शोभा करनी चाहिए, जिहड़ा कि गुरमत है। और वो ये अंदर दी सुंदरता जे, वैर विरोध छड्डना, जलसी छड्डनी, ये अंदर दी सुंदरता है। और साध संगत जदों सूरदास जी नूं अपना मदन मोहन सी नां ते उन्होंने एहसास होया तो लड़की नूं रोज़ मिलन आ जाते थे, बाकी भुल गए। तो एक दिन लड़की नूं कहिंदे ने कि तू ना 2 सलाइयां लैके आई। मदन मोहन जी जन्म तो अन्ने नहीं सन, सलाइयां वो बेचारी भोले भाव 2 सलाइयां लै आई। दूसरे दिन जब मिलन आई मदन मोहन नूं ते उन्होंने 2 सलाइयां अपनियां अखां 'च पा लईयां, खोब लईयां। तो फिर वो अंधे होए, फिर उन्हें दिसना बंद हो गया। वो बड़ी कुड़ी जड़ी सी बड़ी गश पा के खा के डिग पई। और उन्होंने दसिया असल विच मैं इस करके यह काम कीता कि मैं अंदर दी सुंदरता भुल गया सा। जिहड़ा काम मैनूं मेरे नूं हरी ने करन वास्ते भेजिया सी वो काम मैं कर गया कीता नहीं, और तेरे नाल ही भुल भुलेखे च पै गया, तेरी सुंदरता वेख के ही। और संत जनों फिर उन्हां दा जीवन पूरा बदल गया। फिर वो दोबारा भगती वाले पासे आ गए, इस हरी की पछाण करने वास्ते वल्लभाचारियां नूं मिले। क्योंकि भावें किन्ने भी गीत लिखे होण, किन्ना कुछ ही तुहाडे कोल क्यों ना होवे, जिन्ना चिर सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुंदी, जिन्ना चिर सतगुरु नहीं मिलता उन्ना चिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। इसे करके भाई गुरदास जी ने पावन बाणी दे विच लिखिया कि विन गुर होर ध्यान है सब दूजा पाओ। गुरु के बगैर होर जिहड़ा ध्यान करने ने दूजा भाव है, वो तुहानूं रब वाला पासा नहीं है। बिन गुर शब्द ज्ञान है फिक्का लाओ। गुरु के ज्ञान तो बगैर होर गल्लां करनियां, होर शब्द गाने, वो फिक्का है। क्योंकि उहदे विच किन्ने चिर वास्ते चंगा लग्या सी, चंगे तो चंगे गाने बड़े बड़े लखां रुपइयां नाल जिहड़े रिकॉर्डिड हुंदे ने, किन्नी वारी सुन सकने, 2-4 बारी सुन लांगे फिर पुराना लगना शुरू हो जाता। लेकिन अमृत बाणी, पवित्र गुरबाणी, वेद शास्त्र, गीता, बाइबल, धम्मपद, इन्हों जिन्नी बारी जी पढ़ो नवें लगते, उस तरह ही लगते हैं कि अज जिमें अज ही पहली बारी सुनिया। क्यों? वो सच नाल जुड़ के, सच ते आधार है, उन्हों का आधार सच है। इसलिए साध संगत और उन्होंने कहा जिहड़ा गुरु के शब्द तो बगैर कोई तुसी फिक्का है। विन गुर चरना पूजना सब कूड़ा सुआओ। गुरु के चरना बगैर भाई गुरदास जी कह रहे हैं होर पूजा करनी कूड़ा है, झूठ है। साध संगत क्यों? क्योंकि गुरु तो बगैर साडी गति नहीं है, गुर बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। ये सानू जन्म तो लैके दसिया जाता है। और महाराज कहते हैं विन गुर बचन जो मन्ना ऊरा परथाओ। बाकी जड़ा ऊरा काम है पूरा नहीं है, ऊरा होंदा है कि पूरा होंदा है। एक जेकर गुरु के वचन नूं मन्नांगे तो फिर साडा पूरा होएगा। तो गुरु के वचन नूं छड्ड के असी बाकी जिवें सानू पुट्ठे पासे लगाते हैं। अजकल इन्ना ज़्यादा कूड़ का पसारा हो रहा है, किते ते कुछ किते कुछ, किते मुसलमानों के खिलाफ, किते हिंदुओं के खिलाफ, किते कुछ। साध संगत इंसानियत जिन्हां दे कोल आ जाती है, जिन्होंने सतगुरु मिल जाता है तिनका लेखा मिलिया। नानक पूरा सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया। उन्होंने लेखे निबड़ जाते हैं। वो फिर केवल बंदा मैनू तो साध संगत 1967 एक दुकान पर मैं गया, राशन की दुकान सी, और उस दुकान के उत्ते उन्होंने को एक पंडित जी काम करते होंगे शनिचर ऐतवार, उदा फाउंडरी च काम करते सी, पंडित सी। वो मैनू वेख के कहता जी 67 की गल करदा पिया, अज तो हुण किन्ने साल 55 साल पहला। तो मैनू कहते ने कि तुसी कौन होंदे हो? तो मैं उदों ब्रह्म ज्ञान तो मिलिया सी। मैं कहा जी तुहानू की दसना, जे तो मैं तुहानू बंदा दसना तो मैनू बंदा समझ लो, तो जे तुहानू हुण पशु पंछी कोई दसना तो वह सुन लो। चुप करके मुड़ के नहीं बोले। इस वास्ते गुरु को प्यारे हो, काश के असी जदों किसी नूं वेखीए तो असी उहनूं इंसान के रूप च वेखीए, इंसान के रूप में
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਤ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਦਾਸ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੀਰਬਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਲਭਾਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸਿੰਦੋ ਮਾਂ ਪਰੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਕ ਹਕੀਕ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਭਗਤ, ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸੂਟਕੇਸ ਫੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20 ਰੁਪਈਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਛਕਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੀਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਆਏ ਅਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਵੇਖਣ ਪਏ, ਉਹੀ ਕਹੀ ਜੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਪ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ।
तो फिर अकबर ने कहा कोई गल नहीं है, उन्होंने कहो दरबार में पेश हो, क्योंकि अकबर उन्होंने जो रूहानी चीज़ सी, जो उन्होंने को धर्म की गल सी, वो वड्याई करना चाहता सी, पैसे की नहीं। लेकिन सूरदास जी ने उत्थे हाजिर होने तो ना करती, हाजिरी लैन तो ना करती। ये उन्होंने जीवन है। दास हुणे ही इत्थे कांशी टीवी चों भी गल करदा, तो घबराया ना करो, इहो जिहियां गल्लां समाज विच हुंदियां ने। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। साध संगत एक बारी मैं सतगुਰਾਂ ने पूछया, मैं कहा जी बाणी च ते लिखिਆ कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, ते साडी ते लोग निंदा करदे ने कि पुट्ठे पासे लग गए ने। तो उन्होंने कहा किहड़े जहान की गल करदे हो? ये मुर्दियां दा जहान है। जिहड़ा जहान की गल करदे आ वो जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी संतां दा जहान है, जिहड़े रब नूं जानदे ने, जिहड़े हरि नाल जुड़े ने, जिहड़े केवल ते केवल इंसानियत नूं मनदे ने, उस जहान की गल है। उहदे च वेखो किवें उस्तत हुंदी है। तो साध संगत फिर अकबर ने उन्होंने हुक्म करता कि उन्होंने कैद कर लो, और सूरदास जी नूं कैद करके जेल दे विच पा दित्ता गया। और जेल दे विच जिथे पाया गया हनेरी कोठड़ी सी, हनेरी कोठड़ी च, लेकिन हनेरी कोठड़ी विच भी, और जिहड़ा उत्थे जेलर सी उहदा नाम ही तिमर खान सी, तिमर हनेरे नूं कहिंदे ने, तिमर खान सी। ते ओह इन्ना जालम सी, इन्ना सख्ती सी, कैदियां ते बहुत सख्ती करदा सी। लेकिन उस कैद दे विच भी, हनेरी कोठड़ी दे विच भी सूरदास जी ने एक भजन लिखिया, और भजन इन्ना प्यारा सी कि वह पहुँचता पहुँचता अकबर जी को पहुँच गया। तो अकबर जी ने फिर उन्होंने रिहा करता, तो कहा भी तुसी जिथे मर्जी जा सकते हो। तो साध संगत तो फिर प्रचार करते हुए, अपने गुरु की गल जगह जगह करते हुए मथुरा वाल जा रहे सन। तो रस्ते विच एक अन्ना खूह सी। अन्ना खूह हुंदा है जिहदे किनारे ना होण, जिहदी वो टुटी हुए जिहड़ा किनारा हुंदा है। और अन्ने खूह दे विच साध संगत हनेरे च देसता तो है नहीं सी, उहदे च डिग पे। और खूह दे विच चिक्कड़ ही सी, ज़्यादा पानी नहीं सी। तो उधरों जिन्ने भी गवाले भेडां बकरियां गाइयां नूं चारन आउंदे ने सारे घरां नूं जा चुके सी, हनेरा सी। सारी रात उत्थे रहे। दूजे दिन और उहदे जे खूह दे विच भी वो अपना कीर्तन करते रहे, हरी सिमरन करते रहे, हरी हरी करते रहे, राम राम करते रहे, हरी हरी परमात्मा का, क्योंकि जान के जो कहता है उहदे च रासी होर हुंदा। दूजे दिन जो सवेरे चानन होया तो गवाले आए जो चारन वाले सन, मज्झां नूं गाइयां नूं भेडां नूं। उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्हें पूछा तू कौन है? कहने लगे मैं सूरदास हाँ, तो मैनू बाहर कड्डो। और बच्चों ने जाके फिर वड्डियां नूं लिआंदा तो उन्होंने बाहर कढ़िया गया। सो साध संगत फिर उन्होंने अपने बचनों के विच जो सूरदास जी महाराज ने लिखा कि हर के संग बसे हर लोक, ध्यान ना सुनना। हालांकि दिसता नहीं सी, लेकिन वही गल जो अमृत बाणी दे विच भी है, बाकी बाणियां विच ही है। उस चीज़ नूं हरी दा संग, किसी मजहब का नहीं, किसी शास्त्र का नहीं, हरी दा संग। जिस हरी दे नाल, जिस हीरे दे नाल सानूं सतगुरां ने जोड़िया, जिस परमात्मा ने जोड़िया, जे कण कण व्यापक पत्ते पत्ते विच जिहड़ा सब जगह है, और जिहड़ा बंदा सब जगह वेख के सब विच हरी नूं देखदा है, ओहदियां गल्लां ने। और सूरदास जी का शब्द है हर के संग बसे हर लोक। हरी दा संग करके ही सानूं सारिਆਂ विच हरी दिसदा है, हर एक दे विच परमात्मा दिसदा, जिन्ना चिर हरी दा संग नहीं। और हरी दा संग जिहड़ा है वो साडे अंग संग है। अंग ने अंग संग जिहड़ा है वही हरी हुंदा है। जिहड़ा किते दूर होवे, जिहड़ा किते आसमान ते होए, जिहड़ा किते पहाड़ियां च होवे, वो तीरथ ते हो सकदा है, वो संत ते हो सकदा है, पर हरी नहीं है। हरी वो है जिहड़ा सब जगह है, सर्व व्यापक है, जिहड़ा कण कण विच है, पत्ते पत्ते। ते महाराज इत्थे सूरदास जी अपने शब्द च कह रहे ने हर के संग बसे हर लोग, तन मन अर्प सब सरबस सब अर्प्यो, अनंत साई तुन चोक। जब मैं तन मन धन अर्पण कर दिता, अपनी बुद्धि छड्ड दी है, अपनी अकल सियाणप छड्ड दी। क्योंकि साध संगत असी धन की सेवा अरदास बेनती करदा, जिवें काशी टीवी की पैरवी, ये भी धन की सेवा भी असी कर सकने। तन की सेवा भी लंगर ही बना देंगे, झाड़ू भी दे देंगे,
लेकिन ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡਣਾ, ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਕੇ ਸਰਬਸ ਸਭ ਅਰਪਿਆ ਅਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਝੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਅਨਹਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਭਏ ਨਿਰ ਵਿਖਈ ਪਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆ ਵਾਈਫਾਈ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਨ ਬਰਸਿਓ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਏ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਲੋਕ ਔਰ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਨ ਜੋ ਚਾਹਤ ਜਿਉ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਨ ਸੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਓ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਣ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋ ਜਗ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤਨ ਜੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਟਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ TV ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਸੂਰਦਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਹੱਥ ਲੀਨੋ ਦੀਨੋ ਇਹ ਪਰਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਲੋਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਨੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਔਰ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਾਸ਼ੀ TV ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਕਲਿਓ ਪੰਜ ਪੀਤੀਓ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂ ਝੱਟ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਝੱਟ ਕੱਢਾਂ? ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆਖੀ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਾਤ। ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਤ। ਜੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਤ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਖੀ ਬੈਠਾ 70 ਘੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 70 ਘੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਾਏ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੇ ਛਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ। ਛਾਰ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਇਰਾਂ ਤਾਂ ਆਖੇ ਛਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰਕਤ, ਜੇ ਨਿਵਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਡਰਦਾ ਕਰੇ ਭਗਤ।
जे कह जाना मैं भी सॉरी भाई मेरे को गलती हो गई, नहीं भी गलती तो भी कह दें मेरे को गलती हुई, कहते लो जी डर गया ना। यह दुनिया का हाल है। ये 600 साल पहला सी, हुण तो होर बहुत बिगड़ गया। ये 600 साल पहला सी। फिर कहते डरदा करे भगत। फिर उन्होंने अपने आप में कहा काई गली न मेमनी, कित्थे कड्डां झट, इत्थे उत्थे नानका करता रखे पत। आओ साध संगत, गुरुआं नूं अज दे पैगंबरां नूं, अज दे संतां नूं इंज ना कहना पाए, साडे बारे ना कहना पाए। असी बचीए और असी संतां दी निंदा, किसी दी भी निंदा क्यों करिए, मेरा की लेना देना। फरीदा जे तू अकल लतीफ़ है, काले लिख ना लेख, तू अपने काले लेख ना लिख, अपने हथी लिख रहा तू जो निंदा करना है, चुगली करना है, किसी ने वैर विरोध करना है। काले लिख ना लेख, आपंदड़े गिरबान में सिर नीवां कर देख। किसी दी गलतियां ना वेख्या कर, देखनियां ते अपनियां देखिया कर, अपनियां। आओ साध संगत, संतां दी संगत दे विच यही शिक्षा मिलती है कि हर एक दे विच गुण देखो, अवगुण ना देखो। आओ साध संगत, एक कोयल बैठी सी ते कौआ आ गया, आखन लगा भैन तेरा भी रंग काला, मेरा भी रंग काला, लेकिन मनु लोग सारे उड़ा देंगे ने, मनु कोई बहन नहीं दिंदा बनेरे ते तेरा सारे सुनते रहते हैं। तो तू किन्ना चंगा हुंदा जे तेरे वाली भाषा मेरे को भी हुंदी। साध संगत, परमात्मा ने तो दिती है, असी इस भाषा नूं नहीं वरतदे। मिठत नीवी नानका गुण चंगे है ताता जबान जड़ी है। मैं क्या करना, इसे जबान दे नाल तुसी गीत बोल सकते हो, इसे जबान दे नाल तुसी गालां कढ़ सकते हो। रब दा वास्ता है, अपनी जबान गंदी ना करिए। इसे जबान दे नाल पाठ भी करते हो, इसे जबान दे नाल हरी यश भी करते हो, इसे जबान दे नाल गुरु दे चरनां च भी जाते हो। तो इस जबान तो गालां ना कढ़िया करो। इस जबान नूं इन्ना सुंदर कर दिओ कि जिहदे कोल बैठो वो तुहानूं कोल ही बिठाई रखे, कहंदे भाजी फिर कदों आओगे, फिर कदों। तो तुसीं बैठे रहो, साडे दिलां नूं शांति मिलदी पई, सानूं सुकून मिलदा जदों तुसीं आंदे हो। तो जे वो भी बंदे है ने जिहड़े निंदा चुगली बखीली गाली गलोच तू तू करके बोलते हैं, साध संगत उदों भी दिल करदा भी जिन्नी छेती होए जाए। महाराज जी क्या करते हैं कि एक सज्जन इहो जे ने कि किते 4 जी बैठे हुण कमरे दे विच, ते कोई उस कमरे च आए तो वो शुक्र करते हैं भी शुक्र है भाजी आप जी आए हो, साड़ी रौनक वध गई, साड़ा दिल खुश हो गया। तो कुछ ऐसे भी ने जिहड़े उस कमरे च बैठे होण तो सारे सोचते हैं कि रब करे छेती जाए, ये जाए तो शुक्र करिए। असी देखना है मेरे ते आउण ते लोकी शुक्र करते हैं कि मेरे समाज विचों जान ते शुक्र करते हैं। साध संगत, महात्मा सूरदास जी के जीवन तो असी बड़ा कुछ सीख सकते हैं कि बेशक दुनिया विच रहिंदे होए दुनिया के नज़ारिਆਂ वेल अपने आप नूं नहीं लाना, वो देखो जरूर, लेकिन रब दे नाल जोड़िए, हरि दे नाल जुड़िए, जिहड़ा साडे अंग संग है, जिहड़ा कि सतगुरु दे पासों प्राप्त हुंदा है। दास दा सुभाग है कि आप जी दे नाल सत्संग करन दा अवसर मिलता है। काशी टीवी का भी सेवादारां दा धन्नवाद, और आप जी वास्ते फिर अपील करना कि जिहड़ा सत्संग का टूर साडा बनया है उहदे विच तुहाडे दर्शन भी करन दा सुभाग प्राप्त होए। असी बयाना भी जाना है, और कोई भी गलती भुल चुक अज हो गई होए, किसी की शान के खिलाफ कोई वचन निकल गया होए, बहुत अनजान हाँ, बुढ़ा भी हो गया, तो इस वास्ते कई बारी जबान तिड़क भी सकती है। आप जी क्षमा करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।